sessions which I have had so far, we have discussed a lot of things about collaboration, about industry, about the academia, and so on. Now we are here to discuss the more, what we can say, focused topic, more important topic, that is demand of the industry. And to discuss this topic, we have with us a young senior, I would say, a young senior of the industry, Mr. Ravish Khullar sir, who has around 20 years of experience in the industry by now, and he's a senior category manager of Picure Trail. We have with us Devansh Chauryasayaji, a young tourism professional who has just left this side from the academia or as a student and has joined the industry. He's exploring the industry now for the last couple of years. Then we have Anil Kumar Singh sir, who is representing the academia side from BHU. And we have Dylan DeMello, a student from Goa University. So I welcome you all, and let's hope we have a fruitful discussion. Yes, so students, if you are ready, let me tell you one thing very clearly. Yes, I'm an academician, I'm a tourism student, I have worked in industry, but let's set this thing clear before starting the discussion, that all the beautiful faces who are sitting here, all the young minds, what are we? We are products. We are products, and the academics, the institutions are designing you, they are manufacturing you according to the needs of industry. It should be according to the needs of industry, then only they'll be able to sell you properly. So we have to understand what the industry needs, what is the demand of the industry, so that the institutes can manufacture, can design, and can sell these products properly in the market. So I initiate this discussion with Ravi sir. Sir, simple question, what the industry wants, what are you looking at when you are hiring young minds, freshers in the companies? Not just your company, you're representing the entire industry, sir. Uh, Thanks, Dr. Rohit Bolika. I actually agree with a lot with Aman sir. Uh, the thought and clarity of what, as a student, you're looking forward to go into the industry is required. If you look at it, industry has changed a lot in the last 2 decades. I'm sure even Aman sir will agree to it. We all would have learned how a tour management or a hospitality used to focus. We used to have a course which used to be by CUNY Destination Management. Used to have into ticketing or front office or frontline training, then even into a tour manager course. Eventually and slowly and gradually, how millennials will travel, we all know, is based on customized holidays or their own thought process. Uh, Curriculum like tour management courses or tour manager precisely has gone down over the last decade precisely. So industry is changing a lot, and with that, the clarity which you will have will actually require to make sure that how you want to or how you see yourself in the industry, which is growing for the next 2-3 decades for sure in India. Yeah. So ये तो ठीक है sir. But while recruiting, are you having a checklist kind of thing? Okay, communication done, product knowledge done, or any specific criteria which the students should have, 5, 10 things? Uh, I won't say 5, 10, but they should have at least 3 things for sure. One is obviously communication. It doesn't matter whether it's English or Hindi. You should be able to communicate your learnings or feelings towards the product which you're promoting or selling or discussing. It's not about always sales. Any which is when you sit in interview, you are actually selling yourself for that particular job. You are doing your sales from the time you enter into a college to take that seat, or you go for an interview to grab that opportunity to be in the industry. You are selling. So you have the selling skill sets. It's just that how you enhance yourself is important and core to it. What we also see apart from that is your zeal and your learning, how well and what all you would want to learn in zeal out of it. That is the second aspect. Third, obviously, don't look at short-term goals. At least have some mid-term goals, what you would want to achieve in 2 years or 3 years when you enter the industry. Uh, Trying and testing just for 6 months or 1 year may not help you. Rather, figuring it out that, okay, this is my 2.5 year plan, this is my 5 year plan.
that will also help you from the first day of your entering into the industry. Somewhere, and I mean, between the lines, if I can read, are you talking about loyalty to the company? Uh, See, customers are also not loyal these days, but I won't say loyalty as such, but at least giving yourself time to understand how the industry is shaping up. Uh, Whether you are into a sales profile or operations or content or digital marketing, whatever you're doing, you should have a clear thought that, okay, you would want to see this as a building step into your career for the next 2-3 years. सर आई कम टू यू नेक्स्ट सो इंडस्ट्री ने तो बता दिया कि उनको क्या चाहिए तो हम हमारी तरफ से इंस्टीट्यूट्स हम हमारी तरफ से क्या दे रहे हैं क्या दे सकते हैं क्या और देना चाहिए आपको क्या लगता है कि एकेडमिक की तरफ से हम क्या कर रहे हैं Thank you, Dr. Rohit. Just I would like to introduce about my tourism career. When I have started I was taken admission in graduation, BA Part 1, and I have chosen tourism and travel management as a subject. घर वालों ने पूछा क्या लिया है, क्या कौन कौन सा विषय पढ़ रहे हो, तो बताया इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट। कहा ये क्या होता है, तीसरा वाला क्या है। अगर आर्ट्स ही पढ़ना था तो कुछ और पढ़ लिए होते, पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिए होते, सोशियोलॉजी पढ़ लिए होते। ये टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट क्या है। मैंने तो टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट मेरी पहली प्राथमिकता थी, दो मेरी प्राथमिकता में नहीं था। लेकिन घर में जब स्टूडेंट हैं, ये सारे स्टूडेंट्स को उस समय से गुजरते हैं, जब ये दौर रिश्तेदारों में पहुंचा तो रिश्तेदारों ने पूछा क्या पढ़ रहे हो, उनसे भी बताया, उनके सामने ये तीसरा वाला क्या है। किसी को पता नहीं था 94 में कि टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट है क्या, ये सब्जेक्ट है। बताओ तो कहते थे कि अच्छा वो क्या घूमने के लिए जो सड़क पे ट्रैफिक पुलिस होती है वो वाला काम है क्या, ये उसकी कुछ ट्रेनिंग है क्या, फिर उससे ऊपर गाइड का काम है क्या। धीरे धीरे समझाता रहा लोगों को कि नहीं, ये उससे भी बड़ा काम है, एयरलाइन इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर है इस इंडस्ट्री में और उनमें हम काम कर सकते हैं, टीचिंग भी एक काम है। फिर इंडस्ट्री में ट्रेनिंग के लिए गया। पहली बार जब ट्रेनिंग के लिए गया था इंडस्ट्री में ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन पीरियड, दैट टाइम इंडस्ट्री ने कहा है सुनो, जो वहाँ सीख के आए हो उसको भूल जाओ, जो वहाँ पढ़ के आए हो उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे जो ज़रूरत है उसको सीख लो, 1 महीने की ट्रेनिंग है। ये 94-95 की घटना है और ये 2023 चल रहा है। आज भी इंडस्ट्री से स्टूडेंट को यही सुनने को मिलता है कि जो आपने इंडस्ट्री अपने इंस्टीट्यूशन से सीख के आए उसको भूल जाओ, यहाँ जो प्रैक्टिकल है वो डिफरेंट है। मैं एक यहाँ पे आपको कहानी बताना चाहता हूँ। एक मदारी था, गांव में मदारी दिखा रहा था, करतब दिखाने वाले उसके पास थे। उसने एक पोल लगाया, उस पोल के ऊपर 2 उसके पास एक्सपर्ट थे, वो ढोल बजाता और वो एक्सपर्ट दौड़ के उस पोल पे चढ़ जाते थे, चढ़ के ऊपर जाते, फिर नाचते हुए चढ़ते थे, नाचते हुए उतर जाते थे। वही उस मदारी का खेल देखने के लिए 2 चोर भी वहीं पे खड़े थे। उनको लगा कि अगर ये आदमी मुझे मिल जाए तो मैं इसको चोरी करने के लिए मेरे लिए आसानी हो जाएगी। हम लोग दीवार काटना पड़ता है, ये तो सीधे जो है छत पे चढ़ जाएगा कूद के और हम लोग आसानी से अंदर जाके, घर के अंदर जाके चोरी कर सकते हैं। उसने उस मदारी से कहा भाई इसको हमको दे दो। मदारी ने कहा कि ठीक है, इसका उसको मुंह मांगा कीमत दिया और ले लिया उस दोनों एक्सपर्ट को जो चढ़ने में एक्सपर्ट थे। रात को समय हुआ तो चोरी करने के लिए गए। उन्होंने कहा चलो जाओ, ये मकान बहुत
अच्छा है, इस यहाँ से बहुत ढेर सारे माल मिल सकते हैं हमको चोरी के, जल्दी से जाओ और तुम अंदर चढ़ के दरवाज़ा खोल के लाओ। वो कह रहा मैं जाऊँ कैसे, पहले ढोल तो बजाओ। मेरी तो आदत है ढोल बजाने पे चढ़ने की। यही स्थिति है टूरिज्म इंडस्ट्री के एकेडमिक और इंडस्ट्री के रिलेशन में। हम जो बनाते हैं वो वहाँ ढोल बजाने का इंतजार करते हैं कि वो अच्छा ये, फिर धीरे धीरे सीखते हैं और इसी कारण वो बोलते हैं कि जो सीख के आए हो उसको भूल जाओ। कारण क्या है, इसके कारण को भी मैंने 1994 से और 2023 के समय तक जो अनुभव किया, उसका कारण दिखाई पड़ा। हम नकल तो करते हैं, लेकिन जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, उसको छोड़ के हमने टूरिज्म इंडस्ट्री को मॉडर्न इंडस्ट्री बनाने के लिए खूब पश्चिम की नकल की। हमारे सर्विसेज हमने अडॉप्ट कर लिया वेस्टर्नाइजेशन, और उसको मॉडर्निटी कहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा। हम अपने बच्चों को सिखा के भेजते हैं कि बेटा सर्विस करना है तो लेफ्ट साइड में रोटी की प्लेट रहेगी और सामने सब्जी निकाल के रखना है, कटोरी में बड़ी प्लेट सामने रहती है। अब ये क्या इंडिजीनियस है क्या ये सर्विसेज? और अगर हम जानते हैं तो हम आज क्यों पढ़ा रहे हैं, ये मेरा प्रश्न है इस पूरे एकेडमिक जगत से और इंडस्ट्री के लोगों से। वो इंडस्ट्री में इस तरह से इंडिजिनियस भारतीय लोगों को इस तरह की सेवाएं क्यों देते हैं, और इंडस्ट्री उनको इस तरह की ट्रेनिंग क्यों देती है, क्यों नहीं बताती है कि अगर वेस्टर्न पीपुल आ रहा है, अगर वेस्टर्न टूरिस्ट है, उसके खाने की चीजें अलग होती हैं, उनके खाने के टेस्ट अलग होते हैं, आइटम अलग होते हैं, उनको खाने के लिए हम लेफ्ट साइड में रख सकते हैं। राइट साइड में हमको सामने इंडियन को खाने के लिए क्या देना है। डोसा एक छोटा सा सभी जगह मिलता है, डोसा खाने के लिए तलवार और कांटे छुरी सब रख दिए जाते हैं, लेकिन साउथ में क्या इससे खाया जाता है क्या? क्यों नहीं हम उस जिस जगह का फूड है उस तरह की हम वहां की लोकल ट्रेनिंग दे उस चीज को खिलाने के लिए। आप अयोध्या में डोसा खाएंगे और कन्याकुमारी में डोसा खाएंगे, दोनों के डोसा में खाने के तरीके में अंतर मिल जाएगा आपको। तो ट्रेनिंग पे हमको ये इंडस्ट्री की जो डिमांड है और जो सप्लाई है, जो हम सप्लाई कर रहे हैं, इस अंतर को समझते हुए इंडिजिनियस, जिसको मैं भारतीय कहूँगा, भारतीयता को, भारत की आत्मा को समझते हुए, भारत के फूड को समझते हुए, हम 10% हमारे पास अगर टूरिस्ट बाहर से आ रहा है, उसके लिए 90% को हम क्यों खाने में परेशान करते हैं, खिलाने में परेशान करते हैं। उनके जो रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं मेरे जैसे लोग, या आप में भी जो शायद कुर्ता नहीं पहनते, उनके भी कॉलर में घी तेल लगना ही है, क्योंकि रोटी तोड़ने के लिए वो लेफ्ट साइड में हाथ लेके जाते हैं और वो नीचे हाथ में उनकी सब्जी लगनी है। लौट के आने के बाद कहे रेस्टोरेंट में तो खाए, लेकिन शर्ट भी खराब हो गया, 5 स्टार में खा के आ रहे हैं। ये विचार करने की जरूरत है, ये चेंज करने की जरूरत है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एकेडमिक जगत को है सबसे ज्यादा, कि हम अपने जो सिलेबस है उस सिलेबस में ये मूलभूत मौलिक और जो नितांत आवश्यक है, इस परिवर्तन को सबसे पहले करें। और इंडस्ट्री को भी जरूरत है कि हम भारत को भारत रहने दें, हम अमेरिका बना के इसको सर्विस न करें। एक हमारे पास उदाहरण है ट्रेन का, पैलेस ऑन व्हील। अगर आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उसकी टीटी को देखा होगा। जनरली जो टीटी का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कोट पहन के आएगा, काली कोट पहन के, टिकट नहीं है, किनारे आओ। क्यों नहीं है? सही भी है, और अगर आप थोड़ा बहुत समझदार नहीं है तो भी उसको आपको कहेगा अच्छा ये तो टिकट थोड़ा ये वाली गड़बड़ी है इसमें,
ये वाला आईडी कार्ड दिखाओ, ये नहीं चलेगा, ये वाला लाओ, और आपको परेशान करता है। लेकिन वही पैलेस ऑन व्हील का जो टिकट का है, वो उसको हम क्यों दिखा रहे हैं? उसको भारतीय वेशभूषा में, राजस्थानी जो राजस्थान का पारंपरिक वेशभूषा है, उस वेशभूषा में टिकट काटने वाला उसमें बैठा हुआ है, उसमें सर्विस देने वाला उस वेशभूषा में बैठा हुआ है। तो फिर हमारे 5 स्टार होटलों में क्यों नहीं हो सकते? अयोध्या में, काशी में, अगर ये अयोध्या रिलीजियस प्लेस है, वाराणसी रिलीजियस प्लेस है, वहाँ के 5 स्टार होटलों को हम क्यों नहीं ट्रेन कर सकते कि भाई आप भारतीय कपड़ों में, भारतीय जो वेशभूषा है, जो पारंपरिक वेशभूषा है, उस वेशभूषा में आप सर्विस करो। रिसेप्शन पे वेलकम करने के लिए ड्रेस क्यों नहीं चेंज कर सकते? टूरिस्ट यही चाहता है, भारत का भी, बाहर का भी। लेकिन हमारे ऊपर जो औपनिवेशिक मानसिकता के जो प्रभाव पड़े हुए हैं, कल भाई साहब बता रहे थे कि गर्मी में टाई लगा के मैं यहाँ बैठा हूँ राजस्थान अमेठी यूनिवर्सिटी से, आज कितने स्मार्ट लग रहे हैं धोती कुर्ता पहने हुए। ये क्या है? मजबूरी है। मेरे भी यूनिवर्सिटी में मैं जब जाता हूँ तो कहते हैं, अरे आप टूरिज्म के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं और इस वेशभूषा में, आपको तो टाई लगा के आना चाहिए, आपको तो कोट पहन के आना चाहिए। जब तक ये पहन के नहीं आएंगे तब तक आप कैसे स्मार्ट बच्चों को बनाएंगे? मींस स्मार्ट मींस व्हाट? स्मार्ट मींस ये नहीं होता कि धोती कुर्ता जो पहन लिया वो बेवकूफ हो गया। ये जो परंपरागत चीजें हैं, ये जो इंडिजिनियस कॉन्सेप्ट है हमारे सर्विसेज का, हमारी परंपरागत जो चीजें हैं, उसको भारत की जो वास्तविक पहचान है, उस पहचान को लेके चलना होगा। और इंडस्ट्री को केवल मूलभूत परिवर्तन करने के लिए इंडस्ट्री के साथ संबंध स्थापित करने पड़ेंगे। दूसरी एक छोटी सी बात बताऊंगा, कल बात इस पे डिस्कशन हो चुका है कि हम सिलेबस बनाने के लिए इंडस्ट्री को क्यों नहीं इनवाइट करते हैं। अभी हमारे पहले अभी लेक्चर चल रहा था, बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग देते होंगे आप। हम लोग काफ़ी कुछ सीखे उस ट्रेनिंग, आपके इस 1 आवर के लेक्चर से। छोटी छोटी चीज़ें हैं। डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे थे आप। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि टूरिज्म के बैचलर डिग्री और पीजी के 90% कोर्सेज जो यूनिवर्सिटी में चल रहे होंगे, उसमें डिजिटल मार्केटिंग की बात नहीं होगी। अभी तक अडॉप्ट भी नहीं किया होगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटी सहारा एयरलाइंस पढ़ा रही हैं, जेट एयरलाइंस पढ़ा रही हैं अपने करिकुलम में, आज भी पढ़ा रही हैं। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ यूनिवर्सिटी सिस्टम में बोर्ड ऑफ स्टडीज बना के सिलेबस को चेंज करने का एक प्रक्रिया है। और वो प्रक्रिया कौन करेगा? टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर किसी यूनिवर्सिटी में अगर सीनियर प्रोफेसर हिस्ट्री का रहा तो उसने हिस्ट्री के हिसाब से टूरिज्म को समझा, ज्योग्राफी का रहा तो ज्योग्राफी के हिसाब से समझा, मैनेजमेंट का रहा तो मैनेजमेंट के हिसाब से समझा, कॉमर्स का रहा तो कॉमर्स के हिसाब से समझा, और अपने हिसाब से उसमें इनपुट देता है। और उसी इनपुट को लेके पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री में जाके वो सर्विस उसको देना है। वो इंडस्ट्री से लेना देना नहीं है कि इंडस्ट्री ने क्या चाहिए। इस सच्चाई को हम सबको समझना होगा और एक साथ एक फोरम पे खड़े होकर इसके लिए काम करना पड़ेगा। तब जाके हम इंडस्ट्री के अनुरूप अपने बच्चों को तैयार कर पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर बट ये सारी चीज़ें तो ठीक है, सिलेबस इज, वी ऑल ऑफ अस नो कि हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू मॉडिफाई द सिलेबस, उसमें चेंजेस लाना। लेकिन डे टू डे लाइफ में जैसे सर ने कहा कि कम्युनिकेशन चाहिए, स्टूडेंट शुड बी फोकस्ड इनफ, तो उसके लिए एज अ टीचर, एज अ इंस्टीट्यूट हम क्या कर सकते हैं या क्या कर रहे हैं? लेट्स से इन योर इंस्टीट्यूट व्हाट स्टेप्स यू आर टेकिंग टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। आपने सोशल मीडिया की बात की, तो आज हमारे में से कितने टूरिज्म इंस्टीट्यूट्स के खुद के इंस्टाग्राम पेजेस हैं, खुद के फेसबुक पेजेस हैं जो इफेक्टिवली हम रन कर रहे हैं, तो उसके बारे में सर। देखिए सर, कम्युनिकेशन
का जो अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, तो उसने बताया कि कम्युनिकेशन एजुकेशन जो देना है हमको, प्राइमरी एजुकेशन रीजनल लैंग्वेज में देना है। अभी जो सीबीएसई बोर्ड है उसने 2 महीने पहले एक सर्कुलर भी जारी किया कि पूरे देश में जो भी जिस रीजन में सीबीएसई बोर्ड के स्कूल हैं उस रीजन की लैंग्वेज में प्राइमरी एजुकेशन को देना है। कम्युनिकेशन की जब बात हम करते हैं इंस्टीट्यूशन लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो वहाँ सर ने भी बताया उस बात को कि अमन सर ने बताया था कि कम्युनिकेशन का मतलब हम ये मान लिए कि अंग्रेजी बोलना कम्युनिकेशन नहीं है। अंग्रेजी की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे देश हैं जो अंग्रेजी में सर्विसेज नहीं देते, उनके पास हैं एक्सपर्ट वो सर्विस देने के लिए। गाइड चाहिए, ठीक है, गाइड को डिफरेंट लैंग्वेज उसको आनी चाहिए, लेकिन हर सर्विस को प्रोवाइड करने वाला उसकी भाषा में, हमारे यहाँ साउथ से आते हैं भारत में, वाराणसी में, लेकिन बहुत सारे होटल हैं जहाँ पे वो रुकते हैं, उस होटल का तमिल कन्नड़ तेलुगु नहीं जानता, लेकिन खूब सर्विसेज अच्छी देता है और वो अच्छे से सर्विसेज लेके उसको 5 स्टार रेटिंग देकर जाते हैं वहाँ से कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेकर। कम्युनिकेशन की बात जो है ना, उस कम्युनिकेशन को हमें केवल अंग्रेजी से फोकस नहीं करना है। बॉडी लैंग्वेज की जो सर ने बात की, उस बॉडी लैंग्वेज, और उसमें अभी मैं गया था मलेशिया एक बार, तो 2013-14 की घटना है। मलेशिया में पहुंचा, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, तो इंडियन रेस्टोरेंट्स के नाम से वेलकम कर रहे थे आरती उतार कर। वहाँ के जो लोग थे साड़ी पहने हुए थी, लड़कियाँ साड़ी पहन के और आरती उतार के सारे गेस्ट का वेलकम कर रही हैं रेस्टोरेंट में खाने के लिए, नमस्ते कर रही हैं, टीका लगा के आपका वेलकम हो रहा है। सबको लगा कि वाह कितना अच्छा है, यहाँ भारत से बाहर। हमने पूछा कि यू आर फ्रॉम इंडिया? जो रेस्टोरेंट का ओनर था, नो आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। थोड़ा एक कदम पीछे हटा, आप पाकिस्तान से इंडिया रेस्टोरेंट चला रहे? सर नाम इंडिया नहीं दिया होता तो कौन यहाँ पे आता खाने के लिए? ये स्थिति है, ये कल्चरल एडाप्टेबिलिटी है आपकी। तो कम्युनिकेशन जो है ना, उस बॉडी लैंग्वेज से, उस वेशभूषा से, उस पहनावे से आप कम्युनिकेट करिए ना। सर ये सब कहने की बातें हैं, लेकिन हम how we are implementing this, how we are training our students for this. Let's say stage fear एक बड़ी चीज है, ठीक है, आप हिंदी में बोल रहे हो, आपकी दूसरी कोई मातृभाषा में बोल रहे हो, इंग्लिश में बोल रहे हो, उसको डेवलप करने के लिए जो जरूरी है इंडस्ट्री के लिए, उसको हमें कुछ आगे करना चाहिए। एनीवे, सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट गेस्ट, देवांश। So irrespective of what institution you have graduated from, I would like to ask you ki what is lacking in the training. If you feel something is lacking, uh, and in which areas we can do better. आपने अभी just 2 साल पहले studies अपनी complete की है, अभी industry में आप explore कर रहे, तो Thank you so much, sir, for giving me this opportunity, and I will come to on the point. First of all, I would like to thank Dator, and I'm sharing this stage right now with great academicians and industrialists. Thank you so much. And coming to the point, sir, uh, as I have completed my training and right now I'm in the industry, so we faced many challenges at that time. And post that there was a COVID era that came in between, so it stuck to us a hard thing. Uh, in that we were unable to get the experiences of the industrialist at that time because there were no training programs going on at the campus. Uh, we were not having any selection criteria over there, and there were no one to tell us what industry needs from us so that we can prepare ourselves for the same, sir. now when people, the students who are sitting here, they are in offline mode,
So what would you suggest? What So you have missed and what you should yeah, what they should do in the campus? so since I am in the industry right now and I was facing all this stuff, so what I did is I tried to work on few things that I have written in my point as well, and that is number one. You can do internship and you can opt for a entry level position. For example, I live in a town and where there are no travel agencies. There are car rental companies, there are insurance companies. So I worked over there. I spent time to understand the logistics because right now I'm handling the operations in my company, and that made me a very good understanding person what a client needs. So that was the first basic thing that I learned from there. Second, you can do the online courses and get the certifications. That is the most important thing you can do to build your career. Learn something from the industry by getting the information from the courses. Then third, networking. That is most important. Uh, at that time, I came for the very first time. I visited Amarkantak for the conclave. And from there, I am connected with Dator, Vikas, and all the accommodations right now. And from there, I can tell you very well that networking is so important that it can take you to the heights. You can learn from them. Uh, 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 to be very frank, right now my mentor is Vikas sir, who told me, teach me anything in the COVID time. I was doing the content writing work with him, and he made me so perfect so that I can work anything in the operations part for this thing. So all these things, sir, I did, and I would suggest everyone to follow the same in their own manner. Thank you. Thank you. Now I'll come to the other side of we have seen industry, we have seen academics, and then now we are coming towards the student. So Dylan, please tell us what is happening at your end. What this generation of student, what they are thinking, what do you want, what is your demand, and what are your dreams and how you are preparing for it. So, if my dreams to talk about when I first came in to do my BBA was I had in mind like to start my own company because from start I did not want to work a 9 to 5. So if you talk about the tourism industry, like what I noticed, I'm from Goa, so what I noticed in Goa that when tourists and all come, many times like they're mostly taken to our pristine beaches or the other nightlife, but the actual part, the forest part and all of Goa is not shown to them. So that's a gap that I noticed, and I'm planning on like setting up a business to fill that gap to and provide them those kind of services. And at the same time, if in other states also like any people like many people have in mind to become start their own businesses or anything, so one thing I would want to tell all of them also is that look around yourself, do some research, find a gap, and try to set up a business over there. And if everything done correctly, you can succeed over there also. So, What is your expectation from these two people, like industry and academia? so from industry, I would expectations that I have is like as a startup, if I go to them like certain people for mentoring and all, I would if they could mentor me Why and should help they? me. You are posing as a competitor to them, and then why should they help you? So because like I'm posing as a competition Okay. also, but in the sense I'm not doing exactly what they are doing. So it's not a direct threat to them because I'm exploring a market that they did not look at. Good. Yes. And from the education part of it, as sir said, that when you go to industry, they tell you to forget everything that you've learned. So, but that is one thing I would say our college has recognized, noticed. So, our college in our curriculum, like they provide us with a lot of industrial interactions, then case studies, talks with people, then industry visits, and all like those type of things. So, we get an idea about what the industry is performing, practical knowledge in the industry. So when after we pass out, graduate, we go to an industry, we are not blank. So we have experience. So we don't have to forget exactly because we have not done much of, we have done theory, but we have more of practical also. Thank you so much.
So, sir, coming back to you, sir. So, अभी ये भाई साहब कह रहे हैं, and lot of my students also come to this point कि sir 9 to 5 नहीं करना है, मेहनत करनी है तो हम दूसरे के लिए क्यों करें, हम खुद के लिए करेंगे, and so on. So this entrepreneurship is coming up in the young minds. तो सर आप एज अ academician आप कहना क्या चाहेंगे इस बारे में, कैसे उसके लिए हम ट्रेन कर सकते हैं entrepreneurship के लिए? Really, I am surprised to listen. I cannot work 9 to 5. Those people are working their own business in travel trade, yeah, any sector. They are not working only for the 9 to 5. They are working for 24 hours and 7 days. So you have to work. You will not be safe if you are going to start your own business. You are not going to save. I will free in 2 and 3 hours, and my worker will do my job. Then you cannot success. In the academic sector also, I know all the academicians working for 24 hours, but अपने टीचिंग के लिए, अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, not for themselves. मतलब ये पूरे इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए एकेडमिक जगत को वो 24 आवर काम करते हैं. रात को सोने से पहले जगते ही वो उनको फिर ध्यान में आ जाता है कि अच्छा मुझे ये काम करना है, कुछ रिसर्च पेपर करने हैं, कुछ आर्टिकल तैयार करने हैं, अपनी क्लास के लिए तैयार करना है, बच्चों को आज नया क्या बताना है, एकेडमिक से क्या नया आया, इंडस्ट्री से क्या नया आई चीज़ें उनको मुझे आज बच्चों को देना है. इसके लिए 24 आवर जागना पड़ेगा आपको, 24 आवर काम करना पड़ेगा. रेस्ट नहीं है, रेस्ट उसमें से निकालना पड़ेगा आपको. सोने में भी ये सोचना पड़ेगा कि आई एम वर्किंग फॉर माई बिजनेस, आई एम वर्किंग फॉर माई इंडस्ट्री. सर BHU में मैंने सुना कि there is some incubation program for entrepreneurship. Yes, उसके बारे we में have थोड़ा Atal बताइए. Incubation Center, and we are providing the very different students, including tourism and hospitality sector students also. We are having 2 incubation center in IIT BHU also and BHU also. तो वहाँ पे दोनों जगह बच्चों को हम लोग ट्रेन करते हैं, उनके आइडियाज़ लेते हैं. 1 week workshop, monthly, all times open for the students. Students can generate their idea and go there, or we are supporting some financial assistance also. तो वो अगर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको हम फाइनेंशियल सपोर्ट भी करेंगे अपने सेंटर से. बाहरी भी है, अगर केवल BHU का नहीं है, बाहर का भी है, तो वो भी हमारे इंक्यूबेशन सेंटर में आ सकता है. वहाँ से आइडियाज़ अपनी लेके और उसको हम उसके आइडिया को और इनरीच करने के लिए हमारे पास एक्सपर्ट हैं मैनेजमेंट का, सब डिफरेंट सेक्टर से, वो उनको सपोर्ट करते हैं. तो आपको भी स्वागत है हमारे यहाँ. अगर किसी भी एकेडमिक से स्टूडेंट्स अगर आना चाहते हैं तो BHU में कांटेक्ट कर सकते हैं. Thank you very much, sir. I hope the students are taking note of this. Ravi sir, I'll come back to you. And now, in your first part, you have told us about what are your demands or expectations from the students. But what is your expectation from our side, from academic side? What we should do better? Obviously, a bit change of curriculum. Maybe speaking to the industry, Aman sir is also here. Maybe he knows industry because he's speaking to a lot of heads on what kind of roles is required. I may be one part of a leisure market, but he's looking into multiple aspects, speaking to people like him who can guide you, who can guide the academics or the colleges on how and what kind of future demand is looking at and how it can be shaped through the students which is coming up. Second, like how you were also mentioning on the stage fear. Being very honest, one small example, though I never go for recruitments, but last year since we were building our office in North India, I went for recruitments to multiple colleges, may not be travel, but we went to certain private universities and even government colleges. Students were not even ready to take group discussions. We gave them the topic, we gave them ideas also, but they were not able to do basic group discussions. So until unless you are not able to communicate within yourself, which is your known peers, your known friends, you are not able to communicate between them your ideas, how can I see that you will be able to communicate my product or my services to a customer who's ready to take those services? But obviously they may need some explanation of that particular product.
Whether it's a MICE, whether it's B2B, whether it's corporate sales, some explanation, at least customers are required. Third, very valid point from the sirs learning guys, our industry is not like going on the road and selling the product. Okay, our is an industry where the demand is coming to you. A customer who has extra income or you can say affordable income to spend it out for a holiday is looking forward to partner with somebody who can guide them to have a proper holiday. A holiday is an intangible product. Okay, it can be only experienced when you are on ground. It's not like any FMCG or white goods which you buy and you start using it. You will plan your holiday now or your MICE or your corporate travel now, but you will experience that particular product in 2 months or 3 months down the line. So that's when you experience. So that gap of 3 months, you need to make sure that the customer is intact with you. So communication skill again is very important. Thank you so much, sir. Yes, the floor is open for the audience now. Students, if you have any questions, you can please raise your hands. Yes. Can we take the mic in the audience? Yes, yes, yes. हेलो, प्रोफेसर गुप्ता हियर। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट है वो मेरे से बहुत आगे निकल गए हैं। एक तो अभी सुना होगा आपने थोड़ी देर पहले अमन को, इसके पहले आपने विकास को देखा, तो मेरे स्टूडेंट तो मेरे से बहुत आगे बढ़ गए। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उनसे हारा हूँ। दूसरी बात कि जो रोल प्लेइंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस डिस्कशन। You have to become tourist, you have to become tourist service provider, both in two roles, and you should have a strong experience of both the roles. मैं थोड़ा सा वाइफ हूँ, और मेरी वाइफ थोड़ी सी हस्बैंड है, तो हमने रोल बदल लिए। तो आई एम ए पार्ट टाइम हाउस वाइफ। तब मैं आई एम सक्सेसफुल, आई एम हैप्पी कि पार्ट टाइम हाउस वाइफ हूँ, वो रोल प्ले किया है। आई एम हैप्पी कि मेरी वाइफ भी पार्ट टाइम हस्बैंड है, तो डांटती रहती मेरे को, तो दोनों रोल प्ले करना पड़ता है। ये रोल प्लेइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे जो स्टूडेंट थे वो बहुत घूमते थे, वो जाते थे टूर पे, एक्सपीरियंस करते थे, बाहर भी जाते थे, देश में भी जाते थे। तो ये रोल प्लेइंग इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू शुड प्ले द रोल ऑफ योर कस्टमर। You should try to understand your customer. Second, we started OJT. You all know about it, on the job training. जब 91 में हमने शुरू किया था टूरिज्म, तो आधा दिन वो कंपनी में काम करते थे और आधा दिन इंस्टीट्यूट में रहते थे। और ये स्पेशल परमिशन मैंने अपने वाइस चांसलर से ली थी कि सबको ये पूरा समय चलाने की जरूरत नहीं है। 3 घंटे पढ़ा दे बहुत है, वो 6 घंटे इंस्टीट्यूट में रहेंगे होटल में। और ये पॉसिबल इसलिए हुआ कि हमने जो एसोसिएशन बनाई थी रन करने के लिए इंस्टीट्यूट को, उसमें होटल एसोसिएशन भी थी, ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन भी थी, एयरलाइंस वाले भी थे, वो सब लोग साथ में थे। तो दे वर रेडी टू सपोर्ट अस बाय प्रोवाइडिंग ओजेटी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो बहुत जगह पॉसिबल नहीं कि कहाँ भेजोगे बच्चे के, तो हमने उनको इन्वॉल्व किया था, एयरलाइंस वालों को, होटल वालों को, और दे आर सो सपोर्टिव। उन्होंने हमारे बच्चों को लिया ऑन द जॉब ट्रेनिंग, हाफ अ डे, they work in this industry and had experience. तो हर आदमी थोड़ा सा हस्बैंड बने, वो हर आदमी थोड़ा सा वाइफ बने, और हर थोड़ा हस्बैंड बने, हर टूरिस्ट, हर स्टूडेंट टूरिस्ट बने, हर स्टूडेंट टूरिस्ट प्रोवाइडर बने, तब जाके मजा आएगा। थैंक यू। Thank you so much, sir. In fact, we can have the role plays in the classrooms as well. हम classroom में role play करा सकते हैं, बच्चों से presentations करा सकते हैं. In that way, we can improve the communication. Yes, ma'am. When we talk about the gap between industry requirement and academics, what we are providing, we always say that there is a gap, and there is a big gap in syllabus.
I'm in a syllabus committee, so I understand the pain to change a little in the syllabus. जब तक हम लोग वो पूरा चेंज करके पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके लाती है तब तक नया कुछ आ जाता है. So I will give our example how we are doing in our college, that we are having number of value addition courses. So ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हर 2-3 साल के बाद हम लोग सिलेबस में चेंज लाए. So we are having some value addition courses. Like we are the only one institution in eastern part of India having direct association with ARTA. We are the ARTA training center, and that is included in the syllabus. Okay. In case of GDS also, that is included in the syllabus. So we have designed in such a way that after 3 years of completion of their graduation degree or 2 years master degree, when they are entering the industry, they are having a degree, university degree with them, as well as they are having value addition. So they are fit for that. They are ready to go to the industry. इंडस्ट्री में जाके थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देने का टाइम जो होता है वो भी हम लोग सिलेबस में इंक्लूड कर देते हैं. सो वी आर डूइंग इन सच अ वे. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज सिलेबस. That's true. That's true, ma'am. Thank you. Yes. Can we get the mic? Hi, good afternoon. I'm Dr. Rajiv from Goa. I just want to add on to what my student Dylan has said, because some of you might be surprised what he was saying. I just want to sensitize about the BBA program which we have in Goa. It started in 2000 basically, and it's a different in the form. It is it was programmed on the basis of US business model, where we have trimester system. Exams are internal. The degrees given by Goa University. With the exams, there are no university exams as of now, current 2 batches. And we have soft skills subjects, which like communication skills, okay, perspective building subjects, core subjects, and we had credit system. So we had 2 credit subjects and 1 credit subject. Majority were 2 credit subjects. Apart from the first years, we have part of our syllabus was not syllabus. Part of the program was students have to go for a internship, summer internship, for 8 weeks in industry, anywhere in India or anywhere in the world, for which we guide them throughout that. First, the objective of the first year, first internship is to have an idea about the different aspects of organization, how they operate, understanding basic overview of the organization. Second year, then they go again in the industry with a research-based project to understand the issues faced by industry, and they work on it, and they are after which they give a presentation on that, which is then again checked by industry people. Okay, and final year, the final year they have to come up with one final project. And the best part is this, the faculty has to a large extent freedom to decide on how to, the pedagogy which is now implemented by NEP is the pedagogy which I have been always practicing. We could discuss a case, we could have a group discussion, we could have a quiz, we could have article analysis, whatever. And that's why this program in Goa has been very successful, and the gap between industry and academia, at least for this program, was as good as minimized, very minimized, because if there's any, when industry wants any graduate, the first preference in Goa is given to a BBA graduate. Okay, yeah, thank you. Thank you, sir. So रवि सर, थोड़ा बहुत हम भी काम कर रहे हैं. Thank you very, very much. I think sometimes the truth lies between 2 opinions. So, what can be regularly customized? And मैं मैम की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि बहुत जल्दी जल्दी आप कस्टमाइज नहीं कर सकते, लेकिन आप कर क्या सकते हैं? आप there can be some courses. So I would personally, I don't know whether anybody of you have seen, there is a travel agents course run by ASTA, American Society of Travel Agents. What they have changed is that they have left ITA 30 years back now. They don't teach ITA too much now. But what they have done is that they have divided the education into 2 parts. One is a product part and one is a professional part. Now, professional part is communication skills, email writing, selling skills, convincing skill, negotiating skills, and all of that get done through role plays, and all of that get done through videos and all that stuff. They use modern way of teaching that. While the product skill can be selling a car, selling a tourism destination, selling or operationalizing a cruise, business travel management,
वाइल दिस कीप्स ऑन चेंजिंग, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी भी चेंज होती रहती है, प्रोडक्ट का तरीका भी चेंज होता रहता है. जब हमने ट्रैवल इंडस्ट्री में चालू किया था, एंड सर वाज राइट, Mr. ICG was right that, you know, I worked with travel agency. We used to issue tickets. Now nobody issues tickets, right? IATA codes की अब कोई वैल्यू नहीं रह गई है. That has been given to technology. आप बॉम्बे लिखिए वो अपने आप बता देगा, आप कोपेनहेगन लिखिए वो अपने आप बता देगा. आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी को वहां ले आई है कि ऑपरेशनल स्किल्स की आपको जरूरत है इतना जितना जानने की जरूरत है. थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, बाकी हम सिखा देंगे. लेकिन जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं, जब उन पर काम करना पड़ता है कि फ़ोन उठा के ये बोलना है, थैंक यू फॉर कॉलिंग ABC ट्रैवल एजेंसी, दिस इज़ अमन हेयर, हाउ मे आई हेल्प यू. और आप चाहे उसे अंग्रेजी में बोले, हिंदी में बोले, तमिल में बोले, तेलुगु में बोले, दैट डजंट मैटर. और जब कस्टमर अपनी बात कह रहा है तो उसकी बात सुनना, उससे 2 सवाल पूछना. हम तो इसी से स्ट्रगल कर रहे हैं कि यही बच्चे को सिखाना. उसके बहुत रीज़न हो सकते हैं, किस परिवार से आया है, किस बैकग्राउंड से आया है, वहाँ सवाल पूछने की इजाज़त थी या नहीं थी, बातचीत करने की भी. हम थोड़ा सा डिफरेंट कंट्री है. जब बच्चा छोटा होता है, बच्चा आता है, हम बच्चे को कहते हैं चलो मेहमान आए, बोल बेटा बाबा बाबा ब्लैक शेप, जॉनी जॉनी यस पापा. और बच्चा जब सवाल पूछने लगता है तो हम बोलते हैं, जब 2 बड़े बात कर रहे होते हैं बीच में बोलते नहीं है. ठीक है, तो बच्चा क्या है, वो सवाल पूछना छोड़ देता है. इंडस्ट्री स्ट्रगल इससे कर रही है. मतलब आई एम स्ट्रगलिंग फॉर 15 years टू टीच पीपल हाउ टू आस्क अ राइट क्वेश्चन. And this gets very surprising. So I think मेरी पर्सनल एडवाइस एकेडमिक को ये होगी, एंड आई थिंक आपके भी. ऐसा नहीं है कि आपके हाथ वो भी बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं, आपके हाथ भी बहुत ज़्यादा बंधे रहते हैं बहुत जगह. जो इंडिपेंडेंस ICG ने 92 में गेन की थी AVLA यूनिवर्सिटी से, मुझे नहीं मिले बहुत ज़्यादा एकेडमिक्स जो उतनी इंडिपेंडेंस गेन कर पाएँ कि बच्चों को 6 घंटे के लिए दिन में नौकरी करने की इजाज़त दिला दें. राइट. सो आई थिंक वो एक पहलू है. पर आई थिंक आप थोड़ा इसमें कर सकते हैं कि इंडस्ट्री को प्रोफेशनल स्किल्स क्या चाहिए. उन स्किल्स को ज़्यादा चेंज करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती. वो करिकुलम नहीं चेंज करना पड़ता, वो जनरली सेम रहता है. रोल प्लेस के थ्रू, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आप कैसा भी कह लें, उसके बहुत तरीके हैं. राइट. आप इंटरव्यू स्किल्स दिखाइए बच्चों को. ठीक है, हमारे यहाँ जितने भी इंडस्ट्री में जो लोग हैं, हाउ टू अटेंड अ मीटिंग, इट्स अ स्मॉल स्किल. आप 2 घंटे में सिखा सकते हैं किसी को कि इस मीटिंग में कैसे मिनट्स बनाए जाते हैं, कैसे बातें की जाती हैं, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, कैसे जवाब दिए जाते हैं. ठीक है. सेलिंग स्किल का मतलब यहाँ एग्जैक्टली वो है, मैं नाम भूल गया सर आपका. तो सेलिंग स्किल का मतलब ये नहीं है कि आपको, सेलिंग स्किल का मतलब है कि कस्टमर की बात सुनकर जो उसे बेच रहे हैं वो उसको ऐसा लगे कि वो उसी के लिए है. अब ये मैं मानता हूँ कि थोड़ा टाइम लगता है इसे आने में. तो प्रोडक्ट तो हम सिखा देंगे, प्रोडक्ट में तो हमारे इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम से हम सिखा देंगे. बट आई थिंक अगर बच्चा प्रोफेशनल स्किल्स के साथ आए इंडस्ट्री में, प्रोडक्ट के लिए हमारे पास बहुत लोग हैं, इसीलिए रखे हुए हैं. वो सिखा देंगे प्रोडक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. I don't know, I will be able to make some sense or not. Yeah, definitely, sir. Thank you so much. I am learning a lot. केवल प्रोफेशनल स्किल के साथ आना चाहिए. एथिक्स एंड वैल्यू को भी प्रोफेशनल स्किल के साथ एथिक्स एंड वैल्यू नहीं सर. आज प्रोफेशनल का मतलब क्या है सर एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ. आज जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं ना, उन बच्चों को 12th के बाद जब हम उससे मोटी फीस जमा कराते हैं अपने इंस्टीट्यूशन में, उनके गार्जियन, हमारे और आप जैसे गार्जियन ही उन बच्चों से पूछते हैं कि तुम्हारे लिए मैंने 2 लाख रुपए फीस जमा किया है. एक सेमेस्टर की 2 लाख रुपए फीस, 3 साल में तुमको मैं 6 लाख जमा करूंगा. पता है कैसे जमा किया है? बहुत परेशानी में मैंने जमा किया है. वो पैसे मेरे कब वापस करोगे? और वो गार्जियन, वो बच्चे फिर स्ट्रेस लेके जाते हैं कि मुझे तो केवल पैसा कमाना है और हाई पेड सैलरी चाहिए. वहाँ पे मॉरल वैल्यू, एथिक्स को भूल के वो दूसरे टाइप के ही प्रोफेशनल में लग जाते हैं. उन चीज़ों को भी हमें रोकना पड़ेगा कि इंडस्ट्री में आना है. इंडस्ट्री केवल पैसा बनाने की, पैसा छापने की मशीन नहीं है. टूरिज्म इंडस्ट्री हमारी कुछ संवेदनाएं हैं, एथिक्स है,
कुछ वैल्यू है, उनके साथ हमको इंडस्ट्री में पहुंचना है, उस एथिक्स वैल्यू को भूल के नहीं पहुंचना है। completely agree. I'm no disagreement there. But however, I mean, on the other hand, I think we have a very different concept of being a professional. हम प्रोफेशनल को कोई हार्ड कोडेड, जिसका दिल नहीं है, आत्मा नहीं है, ऐसा व्यक्ति समझने की कोशिश करते हैं। भ्रांति है, ऐसा है नहीं। वो प्रोफेशनल नहीं है, वो एक प्रोफेशन में कुछ अच्छा कर रहा है, ऐसा हो सकता है। प्रोफेशनल का मतलब ये है जो भी प्रोफेशन वो कर रहा है, वो टूरिज्म है, ट्रैवल है, जो भी प्रोफेशन है, उसके प्रति कंप्लीटली कमिटेड है और उसके लिए जिस भी स्किल की ज़रूरत है, अपने कस्टमर को बेहतर चीज़ें देने के लिए, उसको बेहतर जो भी वो कस्टमर लेने आया है, राइट, उसके प्रति वो कंप्लीटली कमिटेड है। तो प्रोफेशनल, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ काफ़ी कुछ, और मैं मानता हूँ आपकी बात बिल्कुल सही है कि एथिक्स और मॉरल्स और प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़, ये इनके बिना तो देखिए, एक अच्छा इंसान ही अच्छा ट्रैवल एजेंट हो सकता है, एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा ड्राइवर हो सकता है, और एक अच्छा इंसान ही अच्छा टीचर हो सकता है। अच्छा इंसान होना तो डेफिनेटली ज़रूरत है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन मेरे कहने का मतलब, जो प्रोफेशनल स्किल्स की यहाँ बात कर रहा था, वो सिर्फ ये कह रहा था कि किसी भी प्रोफेशन को मैनेज करने के लिए आपको एक प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है, और उसको उसमें बेहतर करने के लिए आपको उसकी प्रोफेशन की, ड्राइवरी सीखना एक प्रोडक्ट है, ड्राइवर बनना एक प्रोफेशन है। उसके लिए आपको ड्राइवर सीखने की ज़रूरत है, लेकिन अच्छा ड्राइवर या कामयाब ड्राइवर वो बन पाएगा जिसे ड्राइविंग भी अच्छी आती है, और ड्राइविंग के साथ जो बेसिक प्रोफेशनल स्किल्स हैं, उसमें कम्युनिकेशन डिफरेंट है, उसमें कस्टमर से बात करना, आप कहाँ बैठेंगे, कैसे बैठेंगे, आपको कुछ चाहिए तो नहीं, उसकी बात सुनना, समझना, ये प्रोफेशनल स्किल है उसकी, राइट। अपनी गाड़ी पे कपड़ा मारना एक प्रोफेशनल स्किल है उसकी। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि इंडस्ट्री कहती है प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। मैं प्लीज़ दोबारा से अपने आप को क्लियर करना चाहूँगा ताकि कोई भ्रांति ना रहे। वो ये है कि टूरिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ अपनी इंडस्ट्री की, ट्रैवल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। ट्रैवल इंडस्ट्री में हम मान के चलते हैं कि जो एजुकेशन है वो एक बेसिक एक प्लेटफॉर्म दे रही है, हमें सिखाना पड़ेगा इसे, हम सिखाने के लिए तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लाइक आई सेड कि मैंने पिछले 9-10 साल में कम से कम, अगर गलत नहीं तो 500-700 आदमियों को तो रिक्रूट किया होगा। लेकिन प्रोफेशनल स्किल्स पे हमारा ये मानना है कि वो आपको एकेडमिक को देना चाहिए, क्योंकि उनको देने में और उनको स्किल बनाने में 6-7-8 महीने लग जाते हैं। एक बेसिक स्किल की जब आप ईमेल लिखें तो कैसे लिखें, और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। मतलब इसके लिए कोई आपको आइंस्टीन होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये बहुत छोटा सा काम है कि ईमेल में क्या से सब्जेक्ट मैटर में क्या लिखें, कंटेंट में क्या लिखें, साइन में क्या करें, कैसे ईमेल को छोटा करें, बहुत बड़ा ना लिखें, कैसे उसे इम्पैक्टफुल करें। हमारे लिए काफ़ी है। हमें आप ये दीजिए, बेसिक टेलीफोन स्किल्स हों, बेसिक ईमेल से स्किल हों, माइक्रोसॉफ्ट स्किल्स हों, ये अगर हमारे पास आ रहा है बच्चा और उसे ये पता है कि वो क्या करना चाहता है, उसकी बेसिक प्रोडक्ट स्किल्स हैं, दिस इज गुड इनफ। Industry is, I mean, I can guarantee from the travel industry point of view, sorry, I'm taking your position too, we will hire, we have no problem, we will teach and we will hire, right? जिस रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, उस रिक्वायरमेंट की प्रॉब्लम और भी आती है कि हमारे यहाँ बहुत से बच्चे जाते हैं जब दिल्ली ट्रेनिंग करने के लिए, तो कहें सर वहाँ दिल्ली में हम तो पीजी करके गए थे और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पीजी करके गए, हाँ जी, और वहाँ दिल्ली में वो सिंपली जो है इंटरमीडिएट करके बैठा है, वो हमारा बॉस बन के बैठा हुआ है। हाँ जी, ये जो आप बता रहे हैं सर ना, उस चीज़ को अगर हम केवल छोड़ देंगे, टोटली छोड़ देंगे कि नहीं आप सिखा के ये बेसिक चीज़ें बता दीजिए बाकी हम सिखा लेंगे, तो उसका कंपैरिजन बाकी सिखाने की आप तक अगर रहेगा तो वो डिप्लोमा है, बैचलर डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट हमारे पास कोर्सेज हैं, Sure. और ये कोर्स करने के बाद अगर उसके अंदर ऊपर नहीं उठ रहा है वो, तो उसको फिर वो पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद भी कहेगा कि सर वो डिप्लोमा वाला तो हमसे बढ़िया कर रहा है, उसकी हमसे अच्छी सैलरी है, तो मैं पीजी करके आपकी जाने बात- का क्या मतलब सर, है? आपकी बात बिल्कुल, मैं इस बात से सर बिल्कुल, इनपुट करना होगा इसको, हमको अपने सिलेबस को, इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करके अपने सिलेबस में इनपुट करना होगा, हमको बिल्कुल ठीक है। छोड़ना नहीं होगा सर। सर मैं बिल्कुल इसको नहीं कह रहा छोड़ हूं। नहीं सकते सर मैं आप, अगर मैंने आपको ऐसा लगा है कि मैंने ऐसा कहा है तो शायद मैं अपनी बात सही से नहीं कह पाया हूँ।
ठीक है, और या मैं सही बात नहीं समझा पाया हूँ, आई थिंक दैट मे बी माई फॉल्ट। मैं उसे छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं उसमें इंटीग्रेट के लिए कह रहा हूँ। और जहाँ तक आपकी ये वाली बात है कि क्या इंडस्ट्री में वो लोग हैं जो 12वीं कर कर ऊपर बैठे हुए हैं, और क्या वो बैठे रहेंगे? नहीं। जब 94-95 में मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की थी, ट्रैवल इंडस्ट्री दिल्ली में, एनसीआर में, तो शायद ट्रैवल इंडस्ट्री में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो 12वीं पास शायद 80% होंगे। लेकिन आज वो 80% नहीं है, आज वो 20% है, राइट? आज वो 15% है, शायद 25% है। उनका नंबर लगातार घट रहा है, इंडस्ट्री प्रोफेशनलाइज लगातार हो रही है। मैं आपकी बात से बिल्कुल डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बात आप मान के चलिए कि पीजी कर कर कोई बच्चा गया हुआ है और वहां पर उसका वैसे स्वागत होगा कि आया आया मेरा यार आया, बहुत बढ़िया आदमी आया, ये नहीं होने वाला सर। वहां उसको उस फायर, मतलब आग का दरिया है और डूब के जाना है, वह तो करना ही पड़ेगा। ये बात लेकिन मैं आपको पक्का बता देता हूं, और ये आप अपने पीजी स्टूडेंट से भी कह सकते हैं, जो पीजी करके गया है वो उस आग को झेलने के लिए ज्यादा बेहतर तैयार है वनिस्पत उसके जो 12वीं करके वहां पढ़ रहा है। उसका मेंटल लेवल, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत बेहतर है उस 12वीं करने वाले से। हमारा स्ट्रगल कहाँ आता है कि जो वो 12वीं करने वाला है या 12वीं करके ट्रेड में आ रहा है, वो एक ऐसे परिवार से आ रहा है जहां ये वाली जो स्किल्स हैं ये बहुत नेचुरली उसे मिल रही हैं, और वो इस चक्कर में उससे आगे निकल जाता है। ये देखिए, आप एक बच्चा अंग्रेजी मीडियम स्कूल में दिल्ली में पढ़ रहा है और उसने जैसे तैसे करके वो इंडस्ट्री में घुस जाता है, जान पहचान से। इंडस्ट्री में घुसना जान पहचान से कोई मुश्किल काम नहीं है, किसी का चाचा मामा सब अवेलेबल हैं, वो घुस जाता है। उसकी जो बेसिक स्किल्स हैं, बेसिक कम्युनिकेशन, फोन उठाने की तहजीब और फोन कैसे उठा के बात करनी है, थोड़ी बहुत अंग्रेजी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो आइंस्टीन है या विलियम शेक्सपियर है, उनकी अंग्रेजी भी बहुत बेकार है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल उसके पास एक एडेड एडवांटेज है। लेकिन अगर हमारे स्टूडेंट उस एडेड एडवांटेज के साथ जो आपका पीजी का बैकग्राउंड का जो एजुकेशनल पार्ट है वो उसे लेके जाता है, देन ही विल बी एबल टू स्कोर बेटर ओवर दैट गाय। मैं ये बिल्कुल भी, मैंने एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि आप जो एजुकेशन दे रहे हैं वो देना बंद कर दीजिए, बच्चों को पीजी मत कराइए, प्लीज कराइए पीजी। लेकिन मेरा मतलब है थोड़ा सा 2-4-6 महीने का आप उन्हें प्रोफेशनल स्किल पुश कीजिए। वी कैन हेल्प कि आपको क्या पुश करने की जरूरत है। Yes, वी sir. हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। अभी सर इसमें एक Sir, और sir, sir, add we हुआ have है। a little bit of vocational we have courses already हम we have started the One to one vocational बाद में बात courses. कर लेंगे, let's not Definitely bore we'll others. have another discussion on this. So what is the crux of the matter is definitely communication is important. Personality is important. पहले दिखता है फिर बिकता है, बिकने के बाद मुंह खोलता है तो पता चलता है, बट कम्युनिकेशन बकबक आप वाहियात बकबक नहीं कर सकते हो। इफ यू डोंट हैव कंटेंट, इफ यू डोंट हैव नॉलेज, देन यू कांट सर्वाइव। यस प्लीज। Yes, sir. This question is all to the Please- industry please be members brief. and Yeah. veterans. Sir, tourism, of course, is more employment is provided, 10% of the GDP, 10% of the job. When will we reach a point that tourism graduates will be highly paid? We will be getting 8 lakhs, 10 lakhs. When can we reach that point? Are we going to reach that point? Will tourism be one of the highly paid jobs on par with the other jobs that are there in other industries? Yes, sir. This will, I think, automatically talent will walk in. MBA मार्केटिंग किया हुआ बच्चा को ज़्यादा सैलरी मिलता है टूरिज्म इंडस्ट्री में, और MBA टूरिज्म किया हुआ बच्चे को थोड़ा सा कम मिलता है। Can MBA we let marketing go से। of this 15,000, 20,000, 12,000 era? तो हम भी ज़्यादा मेहनत करेंगे अगर पैसा अच्छा मिला तो। यस स्टूडेंट्स। सर So, like very rightly said by Aman, skill set matters. It's not only your education will matter. Yes, PG is important. So I have done hotel management as my graduation. Then I did normal MBA. But I've done general MBA. I've not done any specialization. But I'm into travel trade. So if I consider myself as compared to people who have done normal MBA during my time and they're into different industries, yes, they may be earning well. But look at their profile set, what they're doing. They're doing the same monotonous job or work day in and day out. If you're in a financial sector, you will be asked to either sell a credit card or a bank account or doing the tally thing, even after your master's. My work profile in the last 10 years, I have done at least
8 to 10 work profiles in the last 10 years in different organizations. I have been into the sales, which is retail sales. I've done into franchisee development, which is developing a franchisee network for an industry or a travel company. I've been into the product side, which is basically how to manage a category, how to launch products, looking into the travel genre, what is getting involved into Indian as a source market, because I handle primarily outbound destinations. Looking into supply side of it, if you remember during OTA era or even currently, how hotel beds or booking.com or even Make My Trip and Yatra have started hiring BD people, which is business development folks, for getting the hotel supply into their network. That's another profile. We have not discussed or worked on it into academics. We have actually hired people who have done these kind of roles in either in Zomato or the Practo kind of an organization, who know how to do these kind of, you can say, negotiation skills, signing those contracts and getting that particular hotel into the OTA platform. I am currently doing affiliate marketing. I'm sure we are not teaching what is affiliate marketing as a role. Affiliate marketing is actually, I'm tying with different organizations who are not into travel to cater to their holiday needs or cater to their travel needs precisely, generating leads from them. So if we are able to skill set the student in a right manner, yes, they can actually earn, rather rightly said, better than what they may be earning in either into a financial sector or into I will say any management sector. But obviously in tech sector, you may not be able to compare that, because each industry has their own benchmark. Okay, an IIM student is an IIM student. They would have done certain, they would have that skill set, they would have been from an IIT or an NSIT or a DC, those kind of colleges, and that's why they're in IIMs. But each skill set would have been matter to get to that particular salary. Thank you, sir. Yes, so now we'll quickly conclude the session. So to conclude it, I would put a few of my things. First of all, yes, communication skills are required. Basic requirement is that personality should be there. You should develop your personality. Stage fear you should remove from yourself. You should look good. Boys and girls, you should look good. You should be able to present yourself. जैसे मैंने बताया, दिखता है अच्छा, जो अच्छा दिखेगा वही बिकेगा. So you should be able to, you should inculcate those things in your mind. Whether you are wearing a kurta or a tie suit, you should look good. You should present yourself nicely. Then you must have destination knowledge. In order to improve destination knowledge, you can weekly एक state लो, 5 destinations उसके cover करो. Within the span of your 2 years 3 years of degree diploma, you will cover entire India. Destination expert certificates are available free of cost online. आप उसको करो. Even during your graduation, post graduation, you are able to take 5-10 of these destination expert certificate. You are through. There are certain other online certificate programs as well. जैसे सर ने बताया, content writing है, social media marketing है, n number of courses, n number of certification programs. Most of them are very cheap. Some of them are free. Do that. Internships आप कीजिए, and yes, definitely engage yourself in this kind of fruitful exercises. जहाँ पे भी आपको मौका मिलता है, volunteership कीजिए और इस तरह के programs attend कीजिए. With this, I thank all the panel members with bottom of my heart. Thank you so much for giving a lot of time to us and have a nice discussion. Thank you, audience. Thanks a lot.